السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ اڑنے والے گھوڑے کی تلاش۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کا نام تھا شاہ نعمان۔ اس کا ملک انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ وہاں ہر وہ چیز موجود تھی جس کی کوئی انسان تمنا رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھا، نہ ہی وہ راحت محسوس کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے اپنی قدیم کتابوں میں ایک عجیب چیز کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو صرف پر اسرار شہر میں ہوتی ہے، اور وہ عجیب چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں کتنا عظیم بادشاہ ہوں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ عجیب چیز میرے پاس نہیں ہے۔ ہو نہ ہو مجھے اس چیز کے بارے میں کھوج لگانی چاہیے۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑا عالم تھا جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنے ایک پر اسرار گھر میں رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پر اسرار چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنا ایک افسر اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ عالم سے عجیب و غریب چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ وہ افسر چلتے چلتے اس پہاڑ تک پہنچا۔ اس نے دیکھا پہاڑ کی چوٹی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت مشکل سے اوپر چڑھا اور چوٹی پر بنے اس پر اسرار گھر کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ افسر پہ دہشت طاری ہو گئی کیونکہ بولنے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک خوبصورت سا قالین پڑا تھا۔ اس پر بنے نقش و نگار بہت ہی دل فریب تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قالین کی طرف بڑھنے لگا اور اس پہ جا کھڑا ہوا۔ اسی لمحے دوبارہ وہی غیبی آواز سنائی دی، حرکت نہ کرنا۔ اگلے ہی لمحے افسر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی ہو۔ اس کے منہ سے دل دوز چیخ نکلی۔ کمرے کا فرش سرک گیا تھا اور وہ قالین سمیت نیچے جا رہا تھا، جیسے یہ قالین نہ ہو کوئی لفٹ ہو۔ اس نے وہی غیبی آواز دوبارہ سنی، ڈرو مت، تم عظیم عالم کے پاس پہنچنے ہی والے ہو۔ جادوئی قالین اسے زمین کی تہ میں لے گیا۔ جلد ہی وہ عالم کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عالم کی آواز سنائی دی، مجھے اندازہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لو سنو میرا جواب۔ شاہ نعمان کو بتا دو کہ وہ عجیب چیز اڑنے والا گھوڑا ہے جس کے 2 پر ہیں اور وہ فضا میں اڑتا ہے، لیکن اس کو پانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ گھوڑا پر اسرار شہر میں ہے اور اس شہر کی طرف جانے کا راستہ تکلیف سے بھرا ہوا ہے۔ اس راستے میں بہت بڑا صحرا آتا ہے، اس کے بعد خونی نہر سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد غضبناک سمندر کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور پھر 3 بلند و بالا چوٹیاں سر کرنی پڑتی ہیں۔ لہٰذا اسے میرا مشورہ پہنچا دینا کہ وہ اپنے ملک میں آرام سے رہے اور اس جادوئی گھوڑے کا خیال دل سے نکال دے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ عالم غائب ہو گیا۔ افسر نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور دوبارہ قالین پہ کھڑا ہو گیا۔ قالین نے حسب سابق سفر شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد افسر اس جگہ سے باہر آ گیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ واپس جا کر اس نے بادشاہ کو سارا قصہ کہہ سنایا اور عالم کے پیغام کو سنایا۔ اڑنے والے گھوڑے کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر شاہ نعمان غصے میں آ گیا اور فوراً ہی اپنے سپہ سالار کو بلایا اور اسے حکم دیا، 100 بہترین سوار تیار کرو اور انہیں پر اسرار شہر کی طرف روانہ کرو تاکہ وہ میرے لیے اڑنے والا گھوڑا لے آئیں۔ شاہ نعمان کے بہترین سوار سفر پر چل پڑے۔ ان کے سامنے وسیع و عریض صحرا تھا، دور دور تک ریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کئی دن تک سفر کرتے رہے حتیٰ کہ وہ تھک کر گر گئے۔ صحرا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا زاد راہ بھی ختم ہو گیا، مارے پیاس کے ان کا برا حال ہو گیا۔ مزید ایک مصیبت اور ٹوٹی کہ صحرا میں ریت کا ہیبت ناک طوفان آیا جس کی وجہ سے بہت سارے فوجی ریت تلے دب گئے۔ کچھ پیاس کی شدت سے جان کی بازی ہار گئے اور کچھ طوفان میں مارے گئے۔ لہٰذا بچے ہوئے فوجی سواروں نے واپسی کے بارے میں فیصلہ کیا اور واپس چل پڑے۔ واپسی کا سفر بھی صعوبتوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ اسی طرح حوادث کا شکار ہونے لگے حتیٰ کہ شاہ نعمان کے پاس صرف ایک فوجی واپس پہنچ سکا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ شاہ نعمان یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے سپہ سالار کو 500 فوجی سواروں کا دستہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ سپہ سالار نے فوجی دستہ تیار کیا اور سفر پہ روانہ ہو گیا۔ اب کی بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا صحرا کا سفر بغیر کسی نقصان کے مکمل ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک تند و تیز نہر تھی جسے عبور کرنا تھا۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور درختوں کو کاٹ کر کشتیاں بنانے لگے۔ کشتیاں بنانے کے بعد وہ نہر میں اتر گئے اور سفر شروع کر دیا، مگر وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بے خبر تھے اور وہ تھی مگرمچھ۔ شاید اسی لیے اس نہر کو
पुरस्रार आलिम ने खूनी नहर कहा था। आन की आन में मगरमच्छों ने कश्तियों पर हमला कर दिया और आनन फानन फौजी सवारों को हड़प कर गए। सिर्फ 5 फौजी सवारों ने बामुश्किल जान बचाई और 1000 मुश्किलात का सामना करने के बाद शाह नौमान के पास वापस पहुंचे और उसे सारी रूदाद सुनाई। शाह नौमान जिद का पक्का था। उसने मुहिम जोई का इरादा तर्क नहीं किया और खुद मुहिम पे जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने 7000 सिपाही लिए और रवाना होने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में उसके वज़रा दौड़ते हुए आए और बोले, आलीजा, आपको अल्लाह ताला ने हर नेमत से सरफराज फरमाया है। क्या ही अच्छा हो कि आप उन नेमतों पर कनात करें और उड़ने वाले घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दें। शाह नौमान ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और अपने इरादे पर कायम रहा। वज़रा ने फिर अर्ज किया, हुजूर, आप सल्तनत के लिए बहुत अहम है, लिहाजा आप खुद इस मुहिम पर ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गैर मौजूदगी में दुश्मन रियासत हमलावर हो जाए और मुल्क पे कब्जा जमा ले। शाह नौमान के जहन पर तो उड़ने वाला घोड़ा सवार था, लिहाजा वो अपनी जिद पर कायम रहा। मुहिम पर रवाना होने से पहले वो साहिर से मिलना चाहता था, लिहाजा वो तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर आलिम के पास जा पहुंचा और उससे पुरस्रार शहर के बारे में दरियाफ्त किया। आलिम ने कहा, शाह नौमान, मैं इस सिलसिले में आपकी सिर्फ एक मदद कर सकता हूँ और वो मदद ये मुखलिसाना मशवरा है कि आप उस घोड़े को भूल जाएं। यही आपके और आपकी सल्तनत के हक में बेहतर होगा। बाकी आप आज़ाद हैं, जो चाहें करें। शाह नौमान ने हूँ कहकर उसकी इस बात को भी हवा में उड़ा दिया। उसके बाद वो सफर पे चल पड़ा। उसका सफर मुसाइब से भरा हुआ था। उसके कुछ सिपाही सहरा में मारे गए, कुछ नहर अबूर करते हुए मगरमच्छों की ग़िज़ा बन गए। उसके बाद उसका समंदरी सफर शुरू हुआ। समंदर के सफर में उसका बहरी जहाज भंवर में फंस गया और बहुत सारी फौज डूबकर मर गई। सिर्फ गिनती के लोग जान बचाने में कामयाब हुए। जब वो 3 चोटियां अबूर करने के लिए पहुंचे तो उसके साथ सिर्फ 50 सिपाही बचे और चोटियां सर करने के बाद बहुत सारे और सिपाही जिंदगी से जुदा हो गए और चंद दिनों बाद सिर्फ अकेला शाह नौमान बाकी बचा। ये सारा सफर कई सालों पे मुहित था। इस दौरान उसकी शक्ल और सूरत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसकी सेहत खराब थी, यहाँ तक कि उसने आखिरी चोटी भी सर कर ली। अब पुरस्रार शहर उसके सामने था। वो इतना खूबसूरत था कि शाह नौमान के मुंह से बेइख्तियार निकला, सुबहान अल्लाह। वो एक सरसब्ज़ो हसीन वादी थी। चारों तरफ सब्जाजार थे, फूलों की बहुतात थी, फलदार दरख्त बाकसरत थे। पानी चांदी जैसा चमकदार और साफ शफाफ था। परिंद और चरिंद चहल पहल में इजाफा कर रहे थे। शाह नौमान ने जी भरकर फल खाए और पानी पिया। इसी असना में उसे नींद आने लगी और वो सो गया। ना मालूम वो कितने पहर सोता रहा। उसकी नींद तब खुली जब सूरज की शाएं उसे जगा रही थीं। वो आंखें मलते हुए उठ बैठा और हाथ मुंह धोने के लिए आबशार पर पहुंचा कि अचानक वो चौंक पड़ा। उसके सामने एक पुरवकार खातून और एक सफेद रंग का परों वाला घोड़ा मौजूद था। शाह नौमान तो सांस लेना तक भूल गया। इधर वो खातून भी उसे हैरत से देख रही थी। आखिरकार वो बोली, तुम कौन हो? मैं इस वादी की मलका हूँ। मलका आलिया, मैं शाह नौमान हूँ, नौमान ने जवाब दिया। मलका उसकी बदहाली देखकर हंसी और बोली, वाह, क्या बादशाह ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते हैं? जवाब में शाह नौमान ने सारी कहानी बता दी। मलका ये सुनकर गुस्से में आ गई कि वो उसका उड़ने वाला घोड़ा हासिल करना चाहता है। उसने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें यह घोड़ा हरगिज नहीं दूंगी और अगर तुमने जबरदस्ती हासिल किया तो तुम्हें इससे कोई नफा नहीं पहुंचेगा। शाह नौमान भला ऐसी बातें कहाँ सुनने वाला था। उसने आगे बढ़कर मलका को धक्का दिया और घोड़े पर सवार हो गया। मलका दूर जा गिरी और उसे बद्दुआएं देने लगी, मगर नौमान कहाँ रुकने वाला था। उसने घोड़े को उड़ने का हुक्म दिया और घोड़ा हवा में उड़ गया। एक तवील सफर के बाद वो अपने वतन पहुंचा। शहर में दाखिल होते वक्त उसे उम्मीद थी कि लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नजर उठाकर ना देखा, बल्कि चंद अफराद ने तो उसका ये कहते हुए मजाक उड़ाया, अरे देखो तो इस पागल को, ये समझता है नकली पर लगाने से इसका घोड़ा उड़ने लगेगा। ये कहकर वो सब हंसने लगे। शाह नौमान ने बामुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किया और सीधा अपने महल की तरफ चलता गया। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, दरबानों ने उसे रोक लिया और कहा, तुम कौन हो और मुंह उठाए कहाँ घुसे आ रहे हो? शाह नौमान ने गुस्से के आलम में कहा, मैं शाह नौमान हूँ, यहाँ का बादशाह। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे रोको? दरबान ने उसे सर तापा देखा और कहा, अरसे बाद किसी के मुंह से शाह नौमान का नाम सुना, बड़ी हैरत हुई। खैर सुनो, शाह नौमान 3 साल पहले मर चुका है और अब उसके मुल्क पर हमारा कब्जा हो चुका है। शाह नौमान ये सुनकर धक से रह गया।
इधर दरबान कह रहा था, यहाँ से 9-2-11 हो जाओ वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। शाह नौमान मौके की नज़ाकत समझ गया और वहां से वापस लौट आया। बाजार से गुजरते हुए उसके जी में आया कि लोगों से बात करूं, लिहाजा वो अपने घोड़े पर बैठ गया और बाआवाज बुलंद बोला, लोगों मेरी बात सुनो। जब लोग जमा हो गए तो बोला, देखो मैं तुम्हारा शाह नौमान हूँ और मैं मुहिम से जिंदा लौट आया हूँ। मेरे पास अपनी कामयाबी का सबूत है। लोगों ने उसे गौर से देखा मगर उसकी शक्ल और सूरत बदल चुकी थी। मजीद ये कि वो अवाम में मकबूल भी नहीं था। उनको सहूलियात फराहम करने के बजाय उन्हें मुश्किलात में डालता था। लिहाजा सब लोग चीख कर कहने लगे, नहीं नहीं तुम पागल हो, शाह नौमान मर चुका है और अगर वो आ भी गया तो हम उसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। शाह नौमान ये सुनकर खौफजदा हो गया कि अवाम का जम गफीर उसे मार ही ना डाले। लिहाजा वो चुपचाप वापस लौट आया। अब उसे सारी दुनिया अंधेर लग रही थी। वो बिल्कुल तन्हा और बेआसरा था। अचानक उसके जहन में मलका का ख्याल आया जिसको शाह नौमान ने धक्का दिया था और वो गिरते हुए उसे बद्दुआएं दे रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने दिल में सोचा और वापस पुरइसरार शहर जाने की ठान ली और सफर शुरू कर दिया। उड़ने वाले घोड़े ने उसे बाहिफाजत वहां पहुंचा दिया। उधर मलका भी मुसल्ले पे बैठी अपने प्यारे घोड़े की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी कि अचानक उसे शाह नौमान घोड़े के साथ आता दिखाई दिया। वो फौरन उठी और बोली, क्या तुम मुझे मेरा घोड़ा वापस कर दोगे? हाँ, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूँ कि लालच का कोई फायदा नहीं और दूसरों को दुख देने वाला खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। मुझे माफ कर दे मलका आलिया। शाह नौमान के लहजे में बहुत आजिजी थी। मलका का दिल पसीज गया। उसने नौमान से इस तब्दीली की वजह पूछी तो नौमान शाह ने सब कुछ सच सच बता दिया। मलका ने सारी दास्तान सुनी तो कहने लगी, मेरा मशवरा ये है कि तुम दोबारा अपने वतन जाओ और अपने हम ख्याल लोगों से फर्दन फर्दन मिलो और उन्हें सारी कहानी सुनाओ। इस तरह तुम अपने हामियों की तादाद में इजाफा कर सकते हो और फिर मौका देखकर अपनी खोई हुई सल्तनत को दोबारा हासिल कर लो। और देखो अब अपनी अवाम के साथ इंसाफ और मुसावात की हुकूमत करना। मलका की बातें शाह नौमान के दिल को छू गईं। वो कुछ कहने ही वाला था कि मलका ने कहा, शाह नौमान अगर तुम इस नेक काम के लिए तैयार हो तो मेरा घोड़ा ले जाओ, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा और जब तुम कामयाब हो जाओ तो इसे वापस लौटा जाना। शाह नौमान ने मलका का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने वतन लौट गया। वहां जाकर उसने शहर से कुछ दूर वाक़े पहाड़ी इलाके को अपना मस्किन बनाया और अपना काम शुरू कर दिया। ये काम बहुत ही मुश्किल था मगर चूंकि शाह नौमान की नीयत ठीक थी लिहाजा रफ्ता रफ्ता उसके पुराने दोस्त उसके गिर्द जमा होते गए। उन्होंने शाह नौमान के साथ मिलकर जंग की तैयारी की और एक मजबूत लश्कर तैयार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को हासिल करने के लिए हमला कर दिया। इस दौरान उड़ने वाले घोड़े ने भरपूर किरदार अदा किया। उसने दुश्मन के सरों पर आसमान की तरफ से हमला किया जिससे वो बुरी तरह घबरा गए और एक सख्त जंग के बाद शाह नौमान ने अपना मुल्क दोबारा हासिल कर लिया। फतह के बाद उसने अपने अवाम से खिताब किया और उन्हें एक नई और आदिलाना हुकूमत की खुशखबरी दी। उसके बाद वो पुरइसरार शहर की तरफ रवाना हुआ और वहां पर मलका का घोड़ा लौटाया। मलका ने भी शाह नौमान की तारीफ की। यूं शाह नौमान ने अपना खोया हुआ मुल्क वापस ले लिया और हवादसात ज़माने ने उसे ये सबक सिखाया कि गुरूर का सर नीचा होता है और मुसलसल जद्दोजहद करने से मंजिल मिल ही जाती है। अब वो ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने मुल्क की खिदमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।